مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ فرعون، جس کا حکم زندگی تھا اور غصے کا مطلب موت۔ فرعون مصر کے حکمرانی خاندان میں پیدا ہوا۔ مصر کے بادشاہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا بیٹا، زمین پر خدا کا سایہ سمجھتے تھے۔ اس لیے جب فرعون پیدا ہوا، محل میں جشن ہوا، جادوگر، پنڈت اور دربار کے بڑے لوگ آئے۔ بچے کو آنے والا حکمران کہا گیا۔ پیدا ہوتے ہی اسے عام انسان سے الگ مان لیا گیا۔ فرعون کی پرورش ایسے ہوئی کہ لوگ اسے کہتے تھے، تم عام نہیں ہو۔ فرعون کو بچپن نارمل بچوں جیسا نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد غلام کھڑے رہتے، ہر چیز حکم سے ہوتی، رونا بھی ایک حکم بن جاتا۔ اگر وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا تو وہ چیز ترنت اس کے سامنے ہوتی۔ اس بچپن میں صبر نہیں سیکھا، انتظار نہیں سیکھا، نہ ہی شبد کبھی نہیں سنا۔ اس نے نہیں شبد کبھی نہیں سنا۔ ذہنی تربیت۔ فرعون کی ذہنی تربیت گھمنڈ بھرا دماغ۔ استادوں نے اسے یہ سکھایا، تم پیدا ہی حکم دینے کے لیے ہوئے ہو، لوگ تمہارے لیے بنے ہیں، تمہاری نسل سب سے اونچی ہے۔ بچپن میں ہی اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا، میں الگ ہوں، میں بڑا ہوں، میں اوپر ہوں۔ یہی تکبر کی بنیاد پڑی۔ فرعون کو بچپن سے ہی دکھایا گیا کیسے لوگوں کو ڈرا کر قابو میں رکھتے ہیں، کیسے جادو سے لوگوں کو حیران کیا جاتا ہے، کیسے لشکر صرف ایک اشارے پہ چلتا ہے۔ اس نے دیکھا غلاموں کو مار پڑتی ہے، لوگ ڈر سے جھکتے ہیں، اور اس نے یہ سیکھا، جو ڈرا سکتا ہے وہی بڑا ہے۔ فرعون کے بچپن میں رحم دل کی تعلیم نہیں تھی، غریب کو درد نہیں سکھایا گیا، انسان کی برابری نہیں بتائی گئی۔ اس کے لیے غلام مطلب ایک چیز، لوگ مطلب حکم ماننے والی چیزیں۔ جب بچپن میں دل نرم نہ ہو تو جوانی میں وہ پتھر بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے فرعون بڑا ہوا، لوگ اس کے آگے جھکتے، نام سن کر کانپتے، استاد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ دھیرے دھیرے اس نے سوچا، اگر سب مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں عام انسان کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہیں سے خدا ہونے کا ذہن بنتا گیا۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے فرعون لشکر کا سردار بن چکا تھا، دربار میں فیصلہ ساز ہو چکا تھا، حکم چلانا سیکھ چکا تھا۔ لوگ اس کے آگے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے، نظر اوپر نہیں اٹھاتے، بات سے پہلے جھکتے۔ جوانی میں جب طاقت مل جائے اور رحمت نہ ہو تو طاقت نشہ بن جاتی ہے۔ ذہن بدلنے لگا، میں الگ ہوں۔ جوانی میں فرعون نے سوچنا شروع کیا، میں حکم دیتا ہوں، لوگ مانتے ہیں، میں غصے میں ہوں، لوگ کانپتے ہیں، میں زندہ رہنے دیتا ہوں، لوگ جیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہیں سے خدا ہونے کا خیال جنم لیتا ہے۔ جادو اور دھوکہ سسٹم کی تعلیم۔ فرعون کی جوانی میں جادوگری کو سائنس کی طرح یوز کیا گیا، لوگوں کو ڈرا کر چپ رکھا گیا، سچ اور جھوٹ کا فرق مٹا دیا گیا۔ اس نے سمجھا، سچ وہی ہوتا ہے جو میں کہوں، سچ وہی ہوتا ہے جو میں کہوں۔ جوانی میں ہی فرعون نے ظلم کو قانون بنا دیا، انصاف کو کمزوری کہا، رحمت کو بیکار سمجھا۔ بنی اسرائیل غلام بنا دیے گئے۔ کڑی محنت، مار پیٹ، بے عزتی، ظلم جب عادت بن جائے تو پھر وہ پالیسی بن جاتی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح۔ حق اور باطل کی ایک محل میں فرعون کی جوانی میں اس کا نکاح ہوا۔
आसिया बिनते मुजाहिम से। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझदार, नर्म दिल, हक पसंद, वो कहती जुल्म ताकत नहीं होती, पर फ़िरौन के लिए रहमत कमज़ोरी थी, इंसानियत बेकार। जवानी में ही उसने हक की बात ठुकरा दी। ख्वाब और डर, घमंड के अंदर का खौफ। जवानी के दौर में फ़िरौन ने वो ख्वाब देखा जिसमें बनी इसराइल का एक लड़का उसकी सल्तनत गिरा रहा है। यहाँ एक गहरा पॉइंट है। जो बाहर से खुद को खुदा समझता है वो अंदर से बहुत डरा हुआ होता है। इसी डर ने उसे मासूम बच्चों का कातिल बनाया, जुल्म को और तेज किया। खुला दावा, उसने जवानी के आखिर में फ़िरौन ने खुला ऐलान किया। उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये अकीदा बन चुका था। यहीं से उसकी तबाही का शुरुआत हुई। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुल्म के महल में रहमत, निकाह, सियासत और ताकत का रिश्ता। फ़िरौन का निकाह मोहब्बत के लिए नहीं, दिल के लिए नहीं, बल्कि सल्तनत और शान के लिए हुआ। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आला ख़ानदान से, इज़्ज़तदार, समझदार, नर्म मिजाज। निकाह के वक्त महल रोशनियों से भरा, ढोल नगाड़े, लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे। लेकिन इस शादी में दो सोच थी, एक जुल्म की, एक हक की। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार, दिल से मोमिन। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह को पहचान चुकी थी। बुत परस्ती से नफ़रत, जुल्म देखकर रोती। वो चुपचाप गुलामों की मदद करती। बनी इसराइल पर जुल्म देखकर दर्द महसूस करती। उसका दिल कहता, ये ताकत सच नहीं हो सकती। फ़िरौन का घमंड, बीवी की बात बेकार। फ़िरौन अपनी बीवी की बात नहीं सुनता, रहमत को कमज़ोरी समझता। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नर्म दिल को मजाक उड़ाता। वो कहता, हुक्मरानी आंसुओं से नहीं चलती। यहीं से आसिया का इम्तिहान शुरू होता है। मूसा अलैहिस्सलाम का दरिया से आना, किस्मत तामूद। जब एक दिन नील दरिया में एक संदूक आता है, अंदर एक खूबसूरत बच्चा। फ़िरौन उसे कत्ल करना चाहता था, लेकिन आसिया ने कहा, ये मेरी और तुम्हारी आँखों की ठंडक है। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को गोद में लिया, उस पर रहम की नज़र, उसे अपना बेटा बनाना चाहा। जिस बच्चे को मारने के लिए फ़िरौन हुक्म देता था, उसी के महल में अल्लाह ने उसका दुश्मन पाला। हक और बातिल, महल के अंदर जंग। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम दिया, फ़िरौन को खुदा मानने से मना किया, आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान और मजबूत हो गया। फ़िरौन का गुस्सा आग बन गया। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म जब फ़िरौन को पता चला, आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह पर ईमान ला चुकी है। उसने बेड़ियाँ डलवाई, धूप में सुलाया, भारी पत्थर से दबाया। फ़िरौन चिल्लाया, अपने रब से मांग, वो बचाता है तो देखें। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की, जन्नत का घर। जुल्म के बीच आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना। यह वाक़या कुरान में आया है। आसिया ने जन्नत देख ली, उसकी रूह आज़ाद हो गई। कुरान में आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम अल्लाह ने आसिया को मिसाल बनाया सारी दुनिया की औरतों के लिए। मतलब अगर फ़िरौन के महल में रहकर ईमान बच सकता है तो कहीं भी बच सकता है। फ़िरौन पर अज़ाब, वार्निंग के बाद, नबी के पैगाम के बाद, बार बार मौका देने के बाद आया। अल्लाह बिना वजह अजाब नहीं भेजता। हर अजाब से पहले कहा गया, अगर ईमान ले आओ छोड़ दिए जाओगे। लेकिन फ़िरौन हर बार मजाक उड़ाता रहा।
पहला कहत, भूख और कमी, खेत सूख गए, अनाज कम, दरिया का पानी कम होता गया, लोग भूखे, बच्चे रोते, दरबार में सन्नाटा। फिरौन बोला, यह सिर्फ मौसम है। घमंड ने पहली वार्निंग को इग्नोर कर दिया। कुरान का इशारा। फिर दूसरी बार तूफानी बरसात। अचानक आसमान का रंग बदला, तेज आंधी, ऐसी बारिश जो रहमत नहीं तबाही थी। घर गिरने लगे, खेतों में पानी भर गया, लोग चीखने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने से कहो अपने रब से दुआ करे। फिरौन डर गया, वादा किया छोड़ दूंगा बनी इसराइल को। जैसे ही अजाब हटा फिरौन फिर पलट गया। तीसरी बार टिड्डियाँ। हमला, आसमान काला पड़ गया, लाखों टिड्डियाँ खेतों पर, दरख्तों पर, घरों के अंदर। अनाज खत्म, सब्जी खत्म। फिरौन ने कहा, बस इस बार दुआ कर दो, अजाब हटा। फिरौन का वादा टूटा। अब अजाब कपड़ों में, बिस्तर में, जिस्म पर। लोग सो नहीं सकते। छोटे छोटे कीड़े। ये छोटा अजाब लगता है पर ज़हनी तौर पर तोड़ देने वाला। फिरौन फिर बोला, अगर ये हट गया मान लेंगे, पर फितरत नहीं बदली। उसके बाद पांचवा अजाब मेढक। हर जगह, रसोई में, बिस्तर पर, बर्तन में, खाना खाना मुश्किल, रहना मुश्किल। लोग थक चुके थे। शहर पागल होने लगा। फिरौन चीख कर बोला, बस कर दो। पानी का खून बनना, सबसे खौफनाक मंजर। बनी इसराइल के लिए पानी साफ, फिरौन के लोगों के लिए पानी खून। प्यास से हालत ख़राब। दरबार में सन्नाटा, यानी यहाँ भी फिरौन ने ईमान नहीं लाया। सूरे अल अराफ। हमने उन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएं, मेंढक और खून भेजा। एक बहुत गहरा पॉइंट। हर अजाब फिरौन को तोड़ने के लिए था, मारने के लिए नहीं। अल्लाह चाहता था शायद ये पलट आए, लेकिन घमंड, तकब्बुर, झूठ ने उसका दिल बंद कर दिया। जब हर अजाब के बाद फिरौन वादा तोड़ता रहा, जुल्म और बढ़ता रहा। जब अल्लाह ने फ़ैसला फरमाया, अब निकलना है, और फ़ैसला समंदर पर होगा। यहीं से समंदर का क्लाइमेक्स शुरू होता है। रात का वक्त, ठंडी हवा, समंदर का पानी गहरा और शांत। बनी इसराइल से पहले से ही डर और उम्मीद दोनों में। फिरौन और उसका लश्कर ताकत और एरोगेंस के साथ पीछे से आ रहे थे। फिरौन के जहन में घमंड है, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। यह बच्चे मेरे आगे क्या कर सकते हैं। लश्कर, गुलाम और जंगली घोड़े के साथ तैयार फिरौन। मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म। आज अल्लाह का प्लान शुरू होगा। अल्लाह का हुक्म, समुंदर फट जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाया। अल्लाह ने हुक्म दिया, समंदर के पानी को 2 हिस्सों में बांट दो। पानी 2 हिस्सों में फट गया, रास्ते बन गए। बनी इसराइल सेफ रास्ते से गुजरा। फिरौन का लश्कर भी पीछे से चल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिरौन का गुस्सा और जोश। फिरौन ने कहा, मैं उन्हें पकड़ के ही रहूँगा। उसने अपनी आर्मी के साथ समुंदर में दौड़ लगाई। हर कदम में पानी का दर्द महसूस हुआ। लोग चीख रहे थे, घोड़े और हाथी पानी में डूब रहे थे। फिरौन का डूबना। समंदर फट चुका था, लेकिन फिरौन घमंड में अंधा। पानी उसके ऊपर से आ गया। फिरौन और उसका लश्कर पूरे पानी में डूब गए। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने अल्लाह की रहमत देखी और सेफ निकल गए। कुरान में जिक्र है, और हमने फिरौन और उसकी फ़ौज को डुबो दिया। सूरे अश-शुआरा में। फिरौन के घमंड और तकब्बुर ने उसका आखिरी दिन तय किया। अल्लाह का अजाब सिर्फ फिरौन और जुल्म करने वालों के लिए था। बनी इसराइल पर रहमत हुई और फिरौन का अंजाम इबरतनाक था। समुंदर का सीन बेहद खतरनाक और इबरत हासिल करने वाला था।